हेलो, नरपत लाल, MGGS, जोधपुर। NCERT syllabus, class 9th, political science. Democracy in the contemporary world, the world where we are living today, how we assign the democracy. लोकतंत्र के बारे में चैप्टर है। ये कहा गया है कि किस तरह से लोकतंत्र का विकास हुआ है, किस प्रकार से अलग अलग घटनाएं घटित हुई है जो हमारे लोकतंत्र की तरफ ध्यान आकर्षित करती है। चिले दक्षिण अमेरिका का एक देश है और इस देश में सैल्वाडोर अलेंडे थे, वहाँ के प्रेसिडेंट थे, देश के लिए अच्छा काम कर रहे थे। उनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जिनके बारे में कहा जाता है कि गरीबों और वर्कर्स के लिए, मजदूरों के लिए बनाई थी। दूसरी चीज़ थी कि जो बच्चे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं की गई। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जो ज़मीन जिनके पास नहीं थी उन लोगों को ज़मीनें आवंटित करने की कोशिश की गई थी। विदेशी कंपनियां जो काम कर रही थी, वहाँ के रिसोर्सेज, कॉपर वगैरह को बाहर ले जा रही थी, उसको रोकने के लिए कोशिशें की गई थी। एक लोकतांत्रिक सरकार थी और लोकतंत्र का अर्थ होता है कि एक ऐसी सरकार जिसकी संचालन जनता खुद करती है, ये जनता के द्वारा की जाती है और इसमें जनता के द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। तो इस तरह से जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन लोकतांत्रिक कहलाता है। इसी लोकतांत्रिक का एक हिस्सा थे। अलांडे ने जो निर्णय किए थे उन निर्णयों का विरोध भी किया गया। ऐसे लोग थे, विशेष रूप से विदेशी कंपनियां, धनी और चर्च, इन लोगों ने जो विरोध किया था। और इस विरोध के पीछे एक मुख्य उद्देश्य ये था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उन्होंने सपोर्ट किया था कि किसी भी तरह से इस लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर ऐसी सरकार लाई जाए जो इनके फेवर में काम करे। और ऐसी ही सरकार आई। मिलिट्री का एक वहाँ पर घटना हुई थी, मिलिट्री ने कब्जा कर लिया था और सरकार पर नियंत्रण किया था। मिलिट्री के जो मुखिया थे वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे और ये पूरी की पूरी घटनाक्रम हुई। नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, democracy. The democracy is a form of the government that allows people to choose their rulers. Only leaders elected by the people should rule the country, and people have the freedom to express views, freedom to organize, freedom to protest. All the rights are belongs to the people. Is it democracy? In any case, nowadays the democracy is a different part of the world. There are still certain countries doesn't have this democracy. There can be kingdom also, dictatorship also, military rules also. Anyway, let us move to the South America. Nation is Chile. Salvador Allende, President of Chile, a government in South America, working there. On 11th September 1973, the day his government was overthrown by military, Allende's several policies decision to help the poor and workers. These included reform of the educational system, free milk for children, redistribution of land to the landless farmers, and opposed to foreign companies, taking away the natural resources like copper from the countries. The landlords, the rich, the church opposed these policies. Some other political parties in Chile also oppose his government. The military coup.
surrounded by president's house and started bombing it. President Allende died in military attack. A government elected by people was overthrown by a military through conspiracy and violence. On 11th September 1973 was a military coup. Coup means sudden overthrow of the government illegally, was not legally. General Augusto Pinochet, an army general, led the coup. The government of United States of America, USA, was unhappy with the Allende's rule and is known to have supported land-funded activities that led to the coup. Pinochet became the president of country and ruled it for the next 17 years. A military dictatorship was established in Chile. Democracy was removed and dictatorship started. Pinochet government tortured and killed several those who supported Allende and those who wanted democracy. Alberto Belset of the Chilean Air Force and many other officers who refused to join the corps. Alberto Belset with his other officers opposed, and it was not accepted by General Pinochet, and they were dead. His wife and daughter were put behind the bar. Now, after certain time, they have to take votes. So, Pinochet launched the referendum. Referendum means a direct vote in which an entire electorate is asked to either accept or reject, yes or no, the particular purpose. This was may be adopted to new constitution or a law or a गवर्नमेंटल पॉलिसी. जनमत, इसे हम जनमत बोलते हैं. जनमत में जनता से उसका यस और नो में प्रश्न पूछा जाता है. ये कोई नियम हो सकता है, इंस्टीट्यूट, कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है. ये उस समय जो है पिनोशेट गवर्नमेंट ने मांगा. रेफरेंडम in 1988, after 17 years, he has asked the referendum to the pupils. Chile, people of the Chile, not forgotten their democratic traditions, their rights. Their vote was decisive, no to Pinochet. The felonies, criminals, cowardice and treasons, the sedition, were finally punished. Inquiry into Pinochet rules. These inquiries shows that his government was not only very brutal, क्रूर ही नहीं थी वो, but also very corrupted. भ्रष्टाचारी सरकार वो रही थी. Michelle Bachelet, daughter of the Albert Bachelet, was elected president. Michelle became first woman to be defense minister in लैटिन अमेरिका. अमेरिका के अंदर जो चिल्ले था, चिल्ले में जिस तरह से मिलिट्री ने अपना कॉप किया था, संघर्ष करके अपने अधिकार कर लिया था, उसको जनता ने जनमत संग्रह से रेफरेंडम में हटा दिया. ये चिल्ले की घटना है. और चिल्ले के बाद अब हम आते हैं यूरोप में. पोलैंड. पोलैंड पूर्व यूरोप का एक देश है और वहाँ पर भी कम्युनिस्ट पार्टीज का शासन था. और कम्युनिस्ट पार्टी जो यूएसएसआर, सोवियत यूनियन ऑफ रशिया से कंट्रोल होती थी. एक ही पार्टी का शासन होता था जिसे कम्युनल स्टेट कहा जाता था. कम्युनल स्टेट मीन्स अ स्टेट गवर्न बाय कम्युनिस्ट पार्टी एंड स्टेट कंट्रोल्स ऑल द बिग प्रॉपर्टी एंड इंडस्ट्रीज. जितने भी उद्योग और जो भी संपदा होती थी सरकार की ही होती थी और सरकार एक पार्टी की होती थी. ये कम्युनिस्ट पार्टी थी. ऐसी घटना हुई थी.
तो पोलैंड के अंदर जो घटनाक्रम हुई उसमें वर्कर्स के लिए बड़ी समस्या आई थी। वर्कर्स ने स्ट्राइक किया जिसे गैरकानूनी माना गया और गिरफ्तारियां हुई थी। उस समय एक लैक वालेसा थे जिनको सरकार ने स्ट्राइक की वजह से डिसमिस किया था, वो इसके मुखिया बने और संघर्ष शुरू हुआ था और आखिर में एक लंबी संघर्ष के बाद एक समझौता किया गया था। सो पोलैंड in 1980 ruled by the Polish United Workers Party, which was one of the many communist parties that ruled in several countries of East Europe. At that time, no other political parties was allowed to function. The government in Poland was supported and controlled by the government of Soviet Union USSR, a vast and powerful communist state. Communist state means a state governed by Communist Party, state controlled all the big properties and industries is the communist state. On 14th August 80, workers went on a strike. Strike means the mass refusal by the governor, workers and employees to perform work. Right to strike is legal. नियम अनुसार अपना काम रोक देना, उसको बोलते हैं हड़ताल या स्ट्राइक. All the factories and big properties of Poland were owned by the government. This strike was illegal because trade unions means the association of workers, independent of the ruling party, were not allowed in Poland. Lech Walesa joined the strike, was dismissed from service in 1976, wanted the right to form independent trade union so that they can fight for the right of workers. They also demanded the release of political prisoners, those prisoners kept behind the bar, detained in prisons or house arrested. Government considered their ideas, image or activities as threat to authority of the state. गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई को मानकर उन्हें जेल में या कहीं पर नज़रबंद कर दिया जाता है, वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं. सो पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड एन एंड टू सेंसरशिप ऑन प्रेस, प्रेस के ऊपर प्रतिबंध, सेंसरशिप रोक टोक, अ कंडीशन अंडर विच द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज टेकन अवे. आप हमारी बात को एक्सप्रेस कर सकें, पेपर में हो सकता है, रेडियो पे हो सकता है, टेलीविज़न पे हो सकता है, व्हाटसोएवर, इट शुड नॉट बी स्टॉप. सो सेंसरशिप थी वहाँ पर. नाउ Walesa signed a 21 points agreement with the government that ended their strike. New trade union called Solidarity Unity was formed. Revelation known as the information to all. The widespread corruption and mismanagement of government. The government led by General Jaruzelski grew anxious and imposed martial law. वलेसा ने जो है 21 पॉइंट के प्रोग्राम पर साइन किया था, एग्रीमेंट हुआ था और उसमें यूनियन बनाई जा सकती थी, इसके बारे में भी बात हुई थी. फिर जो सूचनाएं थी वो सेंसरशिप हटाकर लोगों तक पहुंचाई जा सकती थी, इसके बारे में बात हुई थी, जिसका विरोध किया गया था. और जो जनरल जेरूसलम थे उन्होंने वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया. मार्शल लॉ मीन्स अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट टेक्स इफेक्ट व्हेन a military authority takes control of the normal administration of justice. न्यायालय पर भी नियंत्रण आर्मी का हो जाता है, मिलिट्री का हो जाता है, मिलिट्री शासन शुरू हो जाता है, उसी को मार्शल लॉ बोलते हैं. इन दिसंबर 1981 गवर्नमेंट was weaker, the support of Soviet Union uncertain and the economy was in decline. Agreement in April 1989 for free election. Solidarity contested
all the 100 seats of the Senate and won 99 of them. In October 90, Poland had its first presidential election in which more than one party could contest and Walesa was elected the president of Poland. पोलैंड में इस तरह से एक पार्टी का शासन था, लोकतांत्रिक नहीं था। उसकी जगह पर फिर से चुनाव हुए। इन चुनाव में लोकतांत्रिक रूप से जो श्रमिक नेता थे वालेसा, वो जीते, प्रेसिडेंट बने। 100 में से 99 सीटें सीनेट की ये लोग जीत पाए थे। तो लोगों ने जो है अपने डेमोक्रेसी, अपने लोकतंत्र की तरफ कदम उठाया। ये पोलैंड की घटना है। तो हमने यूरोप और दक्षिण अमेरिका की बात की थी। दोनों में रूल्स थे। चिले वाज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेड बाय एलेंडे, being replaced by a non-democratic military government of Pinochet, followed by restoration of democracy. चिले में हमने ये पढ़ा है कि वहाँ पर पहले लोकतांत्रिक थी, उसको हटाकर मिलिट्री आई, मिलिट्री को हटाकर फिर से लोकतंत्र आ गया था। इन पोलैंड वी ट्रैक द ट्रांजिशन फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, उससे हटाकर फिर से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। चिले वॉज रूल्ड बाई अ मिलिट्री डिक्टेटर while Poland was ruled by a political party, Communist Party. The government of Poland claimed that it was ruling on behalf of working classes. मजदूरों के बिहाफ पे हम रूल कर रहे हैं, ये इनका क्लेम था। जबकि पिनोशे मेड नो सच क्लेम, ओपनली फेवर्ड बिग कैपिटलिस्ट। उसने जो है बड़े बड़े धनाधीश, रिचेस्ट लोगों का ही सपोर्ट लिया था। एलेंडे प्रीफर्ड गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन ऑल बिग इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमी। जो एलेंडे थे, जिनको मिलिट्री ने हटाया था, वहाँ उन्होंने जो है बड़े उद्योगों पर अपने गवर्नमेंट का नियंत्रण चाहते थे। वालेसा वांटेड मार्केट टू बी फ्री ऑफ द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। वालेसा जब राष्ट्रपति बने पोलैंड में, तो उन्होंने मार्केट को ओपन किया था। जबकि मिशेल स्टैंड समवेयर इन मिडल ऑफ दिस इश्यू। मिलेसा जब वापस मुखी राष्ट्रपति बनी थी चिल्ले की, तो उसने बीच का रास्ता, मध्य वर्ग अपनाया, जिससे कि वो उद्योग धंधों पर सरकारी नियंत्रण के साथ साथ वो कैपिटलाइज भी किया था। नाउ ट्रांजिशन टू द डेमोक्रेसी ऑफ चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी ऑफ अ मिलिट्री को ऑफ स्ट्रगल टू द पीपल टू ब्रिंग बैक democracy. Democracy has extended throughout the 20th century. Democracy did not spread evenly in all part of the world. It was established first in some region and then spread to other region. While a majority of countries are democratic today, there are still large part of the world that are not democratic. आज भी विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो ज़्यादा सा देश जो है वो लोकतांत्रिक है, लेकिन आज भी कई देश ऐसे हैं जो गैर लोकतांत्रिक प्रणाली से काम कर रहे हैं। इन ब्रिटेन द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी स्टार्टेड मच बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रिटिश कॉलोनीज। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उससे पहले वहाँ पर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू की गई थी इंग्लैंड में, और धीरे धीरे हुआ था, वहाँ चेंजेज होते गए, लोगों को अधिकार देते गए थे। ब्रिटिश कॉलोनीज मीन्स अ टेरिटरी अंडर द इमीडिएट पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ अनदर स्टेट। विदेश का नियंत्रण जहाँ होता था, ऐसे उपनिवेश होते थे। नॉर्थ अमेरिका डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट इन 1776, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ब्रिटिश कॉलोनी ही थी और 1776 ईस्वी में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट अमेरिका करके एक लोकतांत्रिक देश बनाया था। दे अडोप्टेड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस इन 1787। डेमोक्रेसी ऑफन सेंटर्ड अराउंड द पॉलिटिकल इक्वलिटी, फ्रीडम, जस्टिस इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द blacks all over the country could not exercise
द राइट टू वोट अंटिल 1965। लोकतंत्र जरूर आया था, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था 1787 में, और सबको जो है इक्वलिटी, समानता दी थी, स्वतंत्रता दी थी, जस्टिस के लिए भी कहा था। लेकिन जो काले गोरे का भेद था वो 1965 तक नहीं मिटा था। जो काले लोग थे, यानी कि जो दास प्रथा, स्लेवरी वाले थे, उनको वोटिंग का राइट्स 1965 में दिया गया। द राइट ग्रांटेड यूनिवर्सली टू ऑल एडल्ट मैन और वुमन, रिच और पुअर, white or black. This is called universal adult franchise or the universal suffrage. समत्व अधिकार, मतदान का अधिकार, संपूर्ण रूप से व्यक्ति अपना मतदान कर सकता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। In 1900 AD, New Zealand was the only country where every adult had voting right. For a very long time, most countries in Asia and Africa were colonies under the control of European nations. India achieved independence in 1947 and embarked on its journey to transform its from subject country to a democracy. भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। उसके बाद हमने जो है ये डेमोक्रेसी को अपनाया था। उससे पहले ये कॉलोनी ही थी। न्यूजीलैंड है जो 1900 ईस्वी सन में सबसे पहले ये लोकतंत्र को अपनाया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको समान मताधिकार का अधिकार दिया गया था, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, अमीर हो या गरीब हो, काले हो, गोरे हो, कोई भेदभाव नहीं किया था। न्यूजीलैंड वॉज द फर्स्ट country who has accepted all these rights. Now, let us move to the Africa. Ghana used to be a British colony named Gold Coast. It became independent in 1957. Soviet Union itself broke down in 1991. The Soviet Union comprised 15 republican states. घाना जो अफ्रीका का एक देश है, जो उस समय गोल्ड कोस्ट कहलाता था और ये एक कॉलोनी था, 1957 में आज़ाद हुआ था। सोवियत यूनियन जो यूएसएसआर था वो भी ब्रोकन हो गया था। उसके बाद वहाँ भी जो है रिपब्लिकन देश 15 देश बन गए। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान एंड बांग्लादेश मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम आर्मी रूल टू डेमोक्रेसी इन 90s। पाकिस्तान और बांग्लादेश यहाँ पर भी मिलिट्रीज ने अपना अधिकार कर लिया था। जनरल जियाउल हक हो चाहे परवेज हो, इन्होंने वहाँ अधिकार किए थे। इसी तरह से म्यांमार में भी आर्मी का रूल हो गया था। पहले ये बर्मा कहलाता था। नाउ म्यांमार, प्रीवियसली नोन एज द बर्मा, डेमोक्रेटिक रूल्स एंडेड इन 1962 with a military coup. Till now, Suu Kyi continued to campaign for democracy. Struggle has won international recognition. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता हुई थी। शू की जो अभी वहाँ पर सरकार में शामिल है, लेकिन नियंत्रण आज भी आर्मी का ही चलता है। ये लोकतंत्र के विरोध में कार्य जो हमारे पड़ोस के देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल degradation that threatens all the countries together. The United Nations Organization, UNO, is the global association of nations of the world to help cooperation in international laws, securities, economic development and social equity. The UN Secretary General is its chief administrative officer among the कंट्रीज। पूरे विश्व स्तर पर भेदभाव और कोई भी समस्याओं को निपटाने के लिए, थ्रेटन करने के लिए उसको देश सब इकट्ठे हुए और इन्होंने एक संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ बनाया था। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, नियम कानून बनाता है, सिक्योरिटी का काम करता है और आर्थिक मदद भी करता है। तो ये पूरे विश्व स्तर पर एकता स्थापित करना है और इसका जनरल सेक्रेटरी होते हैं जो मुखिया होते हैं।
The World Bank also give loan to the governments. So there are many institutions at the world level that perform some of the function that a rule world government would perform. 192 members of the UN has one vote in General Assembly like the Parliament. विश्व बैंक भी बना हुआ है जो सदस्य देशों को लोन देता है, ऋण देता है, मदद करता है और सभी देश इसके सदस्य होते हैं। जनरल असेंबली का चुनाव होता है जो 192 देश हैं इसके सदस्य सभी अपना एक वोट डाल सकते हैं और ये वहाँ पर काम करती है। नाउ UN Security Council, an organization of the United Nations, is responsible for maintaining peace and security. सिक्योरिटी काउंसिल जिसके 15 मेंबर हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 का चुनाव 2 साल के लिए होता रहता है। 5 जो स्थायी सदस्य उनको एक वीटो पावर है। वीटो पावर यानी कि उनको अनलिमिटेड पावर दिया हुआ है कि किसी भी डिसीजन को ये एक देश अपने वीटो से रोक सकता है, ये पावर इनको दिया गया है। सिक्योरिटी काउंसिल इज फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी। 15 members, Security Council of the United Nations takes such crucial decision. Council has 5 permanent members, that is US, United States, Russia, UK means Britain, France and China. 10 other members are elected by General Assembly for 2 years term. The permanent members has veto powers, as I told you. It means that the council cannot take decision if any permanent member says no to that decision. Now, International Monetary Fund (IMF) is one of the biggest money lenders for any country in the world. It has 173 members states. The vote of each country is weighed by how much money it has contributed to the IMF. IMF में किस देश ने अपनी तरफ से कितना फंड दिया है उसके अनुसार उसको वोट का पावर बढ़ता रहता है, कम होता है और ये दुनिया के देशों को सहायता देने के लिए, लोन देने के लिए बनाया गया है। The World Bank has a similar system of voting. The president of the World Bank has always been a citizen of United States, conventionally nominated by a Treasury Secretary, Finance Minister of the United States government. Big powers in the world, the US and सोवियत यूनियन। जो वर्ल्ड बैंक बना है इसमें प्रमुख पावर, क्योंकि वित्तीय सहायता के ऊपर निर्भर करता है, तो ये अमेरिका के पास ही है। वहाँ का सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो तय करता है, इसका अध्यक्ष बना देता है और इनके पावर्स मुख्य रूप से सोवियत यूनियन यानी रूस और अमेरिका के पास ही है। नाउ let us come to the Asia. Iraq is a country in Western Asia that too it became independent from British rule in 1932. A series of coups by military officers. Since 1968, it was ruled by Arab specialist Baath Party. Saddam Hussein was a leading leader and president of Iraq in 1979. Saddam ran the dictatorial government and suppressed by dissent and opposition to his rules. ये जो इराक है ये आज़ाद हुआ था 1932 में, ब्रिटिश के अंडर में था। यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार आई थी, लेकिन 1968 के बाद ये बाथ पार्टी ने अपना कब्जा कर लिया था और इसमें सद्दाम हुसैन ने नियंत्रण किया था। लंबे संघर्ष के बाद लंबी लड़ाई लड़ी गई, तब जाके इसको हटा दिया था और वहाँ पर वापस लोकतंत्र की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति बनती है जो हम देख सकते हैं। सो दिस वाज द मेन डेमोक्रेसीज डेवलपमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, हाउ मैनी कंट्रीज स्टिल आर नॉट डेमोक्रेटिक कंट्रीज। लोकतंत्र के बारे में हमने बात की है, ये हमारा चैप्टर था
और इस चैप्टर के बारे में आपको ये देखना है कि आज लोकतांत्रिक सरकारों के विरुद्ध क्या क्या ऐसी गतिविधियां आ रही है जो लोकतंत्र को संकट में डाल रही है। दैट्स ऑल, लेट अस सी यू अगेन। शेयर इट, लाइक इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, राइट? जय हिंद।